انہوں نے کہا کہ چھچورے شاید بی جے پی کے امیدوار کو انہوں نے چھچورے کہا ہے. محترمہ آپ نے اتنا نہیں کمایا ہوگا جتنے 5 لوگوں نے کمایا ہے, تو اسی لیے آپ سیاسی طور پر بڑے معصوم ہیں. اس تقاریر کے کھیل میں مت آئیے. میرا نام ناصر حسین استاد ہے. آپ کے پارٹی کے سب سے بڑے مقرر کو لائیے, انشاءاللہ اس کا منہ توڑ جواب دینے کا کام ناصر حسین. اس ہاتھ کا نہیں چلے گا, اب ہاتھ کا نہیں چلے گا, اب ناصر کا چلے گا, مددگار کا چلے گا. یہ شیر ببر ناصر حسین شریعت بھی جانتا ہے, سیاست بھی جانتا ہے, قیادت بھی جانتا ہے, اور علم کلام بھی جانتا ہے, اور حکومت گویائی بھی ہے. مسائل کو ٹک کے اٹھاتا ہے, چٹھی لے کر بات نہیں کرتا. ناصر حسین یہ نہیں کہتا کہ میرے کو جواب دینے آتا ہے, میں جواب نہیں, تم میری طرف سے 10 تاریخ کو جواب دینا. ایسی دھیمی بات ناصر نہیں کرتا. ناصر روڈ پہ بھی گرجتا ہے, ایوان میں بھی گرجتا ہے, اور غریبوں کے مسائل اٹھاتا ہے. آج شرم اور افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کے ہوم منسٹر امت شاہ یہاں پر آتے ہیں اور اس ریاست کے چیف منسٹر کی پیٹھ کو تھپتھپاتے ہیں کہ مسلمانوں کے 4% ریزرویشن نکالنے کا کام کیا. اقلیتوں سے, مسلمانوں سے اتنی نفرت کرنے والا آج ہندوستان کا ہوم منسٹر بنا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر نریندر مودی ہندوستان کے پرائم منسٹر نہیں بنتے تو گلبرگہ نارتھ جو ہے پاکستان بن جاتا. پولیس محکمہ ٹھہرا ہوا ہے, عورتیں خوف زدہ ہے, مرد خوف زدہ ہے, ڈر کا ماحول ہے. کیا کیا جائے, اب کسے کہا جائے؟ جتنے لوگ سامنے تھے وہ اب چلے گئے ہیں, جس کو پاور دیا گیا تھا وہ لوگ نہیں ہے. لوگوں نے سوچا کہ اب ایک ہی شخص ہے جسے آواز دی جا سکتی ہے, وہ ناصر حسین استاد ہے. چادر کی حفاظت کرنے کے لیے ناصر حسین آیا, چادر کو بچانے کے لیے ناصر حسین آیا ہے, تمہاری بچیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے ناصر حسین آیا ہے, آپ کی بچیوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے ناصر حسین آیا ہے. لوگ پھرتے رہے, لوگوں پر ظلم ہوتا رہا, لوگ کورونا میں پریشان رہے, مگر کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا, کوئی ان کی حمایت کے لیے نہیں آیا. آج 2014 کے بعد سے لے کر آج تک ہندوستان کے اندر نفرتوں کا بازار گرم ہے, نفرتیں پروسی جا رہی ہیں, نفرتوں کو ہوا دی جا رہی ہے. الحمدللہ آپ کے سامنے جو قائد ہے جنتا دل سیکولر سے, جناب ناصر حسین استاد, اسے کون نہیں پہچانتا, کون نہیں جانتا, جن کے والد بزرگوار اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قبر میں نور سے معمور فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وہ سعادت حسین استاد کا بیٹا ناصر حسین استاد ہے, جنہوں نے غربا کی مدد کیا, غریبوں کی مدد کیا, مظلوم کا حق ادا کیا, بیچاروں کو چارہ گری عطا کیا. ان کا شہزادہ 5 سال نہیں 10 سال سے آپ کے درمیان ہے, آپ کے مسائل کو اٹھا رہا ہے, بے باکی کے ساتھ ہر ادارے کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. بے شمار چیزیں ہیں, اور یہ ناصر حسین استاد پڑھا لکھا آدمی ہے, قابل آدمی ہے, جس کے اندر ٹیلنٹ ہے, جو انجینئر ہے, زبانوں پر عبور رکھتا ہے, ہر لینگویج جانتا ہے, قانون دان کا بیٹا ہے. اب اگر آپ ایسے کے متعلق توجہ نہ دیں اور ان لوگوں ہی کی بات کریں جو آ کر آپ کے مسائل کو دبا رہے ہیں, 5 سال تک خاموش بیٹھ رہے ہیں, ایسے کی قیادت اگر پھر ہوگی تو یہ آپ کی اولاد کا, آپ کے بچوں کا, آپ
की नस्लों का मुस्तकबिल अंधेरे में आ जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। आपको मालूम है कि महबस मस्जिद के पास एक मसला हुआ था, फजर की नमाज के बाद वहां कुर्सी लगाकर बैठने वाला कौन था? जो जीते थे वो बेंगलोर के अंदर थे, उनके साथी अपने मकानों के अंदर थे। मस्जिद का मसला हुआ, फजर की नमाज के बाद से पूरा 3 बजे तक बाजार में कुर्सी लगाकर बैठने वाला नासिर हुसैन उस्ताद है। हिजाब का मसला आया, हमारी बच्चियों को तालीम से रोका जाने लगा, बच्चियों को बेपर्दा किया जाने लगा। कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरी माँ बहनों जरा बताओ, ए मर्द हजरात जरा बताइए, क्या अपनी औलाद को तालीम देना नहीं चाहते? क्या अपनी औलाद को काबिल बनाना नहीं चाहते? क्या अपनी औलाद को एजुकेशन नहीं दोगे? कैसे दोगे? क्या करोगे? ये फासिस्ट ताकतें तुम्हारी औलाद को इल्म से महरूम करना चाहते हैं, तुम्हारी बेटियों को जागिर बनाना चाहते हैं। इसलिए कि अगर उनको बेनकाब किया जाए, उनके सरों से चादरें हटाई जाए, तो आपकी हमीयत, आपकी इज्जत को गवारा है कि कोई तुम्हारी बेटी की चादर उतारे। चादर की हिफाजत करने के लिए नासिर हुसैन आया, चादर को बचाने के लिए नासिर हुसैन आया है, तुम्हारी बच्चियों की इज्जत की हिफाजत के लिए नासिर हुसैन आया है, आपकी बच्चियों को एजुकेशन देने के लिए नासिर हुसैन आया है। आज वो तो कुछ नहीं किया। हिजाब के मसले में कौन बात किया था? अभी हमारी बेटी, कौम की बेटी, शहर की बेटी, अलम की बेटी दुखड़ा सुनाई वहां का। बताओ कौन गया था वहां पर? कौन वहां के बेगुनाह लोगों को जेल से आजाद किया था? औरतों को पकड़ा गया है। तारीख, गुलबर्गा की तारीख में मैं भी 78 से देख रहा हूं, 1978 से देख रहा हूं, औरतों को गिरफ्तार किया गया, औरतों को पुलिस पकड़ ली। आज तक ऐसा नहीं हुआ, मगर इस बार हुआ, इस दौरे क़यादत में हुआ। औरतों को पकड़ा गया, जेलों में डाला गया। अब मुझे बताओ, ये नौबत कहीं भी आ सकती है। उस वक्त जब औरतों को पकड़ा गया, कौन था कानूनी लड़ाई लड़ने वाला? कौन था कानूनी लड़ाई लड़ने वाला? फौरन नासिर हुसैन उस्ताद ने अपने बड़े भाई जाकिर हुसैन उस्ताद को तैयार किया, अपने फूफीजाद भाई सैयद मजहर हुसैन को तैयार किया, वो आप खलील एजुकेट को तैयार किया, अपने वकीलों का एक पैनल बनाया और ऑर्डर दिया, कुछ भी हो हमारी माँ बहनें जेल में रहने ना पाए, किस तरीके से भी हो, जो कुछ हो उन्हें फौरन आजाद किया जाए, उन्हें रिहा किया जाए, उन्हें उनके घरों को लौटाया जाए। और उसके बाद 2 इंतकाल हो गए, 2 लोगों की मौत हो गई। लोग परेशान थे। नहलाने के लिए मैयत को घर में तो रखो नहीं, बैठ सकते सुबह से शाम तक बस, या रात में मैयत हुई, पूरी रात से सुबह तक। मैयत 2-4 दिन घर में तो नहीं रखी जा सकती ना। अगर मैयत 2-4 दिन घर में रखे तो सिर्फ मैयत ही नहीं जाती, सब लोग आ जाते हैं, है ना? क्योंकि ये कीमती चीज जो रूह है, रूह के टूटने के बाद, जिस्म के रूह से निकल जाने के बाद मैयत को घर में ज्यादा देर नहीं रखा जा सकता। शरीयत का भी यही हुक्म है, इस्लाम भी यही कहता है, क्योंकि वो फूलेगी, फटेगी। इसीलिए खबर में फरिश्ते इंतजार करते हैं, खबर में फरिश्ते सवाल और जवाब के मुंतजिर होते हैं। फौरन उसे खबर में दफनाया जाए, मिट्टी दिया जाए, 40 कदम हट जाएंगे तो खबर में नकीरैन आ जाएंगे, सवाल और जवाब करेंगे। अब वो 2 का इंतखाब हो गया, उसे नहलाने वाला कौन, कफन पहनाने वाला कौन, वो
वहां पुलिस प्रशासन ठहरा हुआ है, पुलिस महकमा ठहरा हुआ है, औरतें खौफजदा है, मर्द खौफजदा है, डर का माहौल है। क्या किया जाए? अब किसे कहा जाए? जितने लोग सामने थे वो अब चले गए हैं, जिसको पावर दिया गया था वो लोग नहीं है। लोगों ने सोचा कि अब एक ही शख्स है जिसे आवाज दी जा सकती है, वो नासिर हुसैन उस्ताद है। आवाज दी गई, वो पहुंचे, तजहीज, तदफीन तक रहे, नमाज जनाजा पढ़ाई गई। खुद नासिर हुसैन उस्ताद ने जनाजे को कंधा दिया, दरगाह के कब्रिस्तान में मैयतों को दफन किया गया। बहुत सारे कारनामे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्या बताऊं? दो बातें तो मैं बता चुका, एक अलंग का मसला, एक गुलबर्गा की महबूब मस्जिद का मसला। आपको मालूम है नया नया मसला रमजान में हुआ। पूरे 10 साल तक तुम्हारे मसाइल के लिए लड़ने वाला अगर कोई है तो ये हारा हुआ कैंडिडेट है, ये हारा हुआ शख्स है। यासीन अली उस्मानी साहब तशरीफ लाए हैं, हमारे मेहमान हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी बसीरत और अफरोज ख्यालात से हमको इस्तिफादा करना है। तो मैं सिर्फ आपका 2 मिनट लूंगा, क्योंकि आज 4 तकरीरें हैं। ए मेरी माँ बहनों, ए शेख रोजा के मुसलमानों, ए हिंदुओं, ए लिंगायतों, ए जो है दलितों, अब घबराने की बात नहीं है। तुम आराम से घरों में सो जाना, क्योंकि तुम्हारी हिफाजत करने वाला आ गया है, तुम्हारे मसाइल उठाने वाला आ गया है। अब तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है। इस बार जम के जिताना है, दुनिया को बताना है कि अब उस हाथ का नहीं चलेगा, अब हाथ का नहीं चलेगा, अब नासिर का चलेगा, मददगार का चलेगा। हाथ ने आजादी से लेकर आज तक मुसलमानों का इस्तेहसाल किया है, दलितों का इस्तेहसाल किया है, अक़लियतों का इस्तेहसाल, यानी उनको इस्तेमाल किया। इस्तेहसाल बोले तो इस्तेमाल किया है। 1947 हमारा मुल्क आजाद हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक किसी शोबे में मुसलमानों को, अक़लियतों को और निचले तबके के लोगों को कोई मराहत नहीं दिए गए। तो आज वक्त आ गया है, तुम जागो, किसी के बरकावे में मत आना। अब बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, हम बुलाते नहीं हैं। नासिर साहब ने किसी को नहीं बुलाया, हमारे पास खुद सीएम इब्राहिम है, हमारे पास खुद हजरत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी आए, हमारे पास हमारे अफजाल महमूद ने कहा, हजरत से बात किया मिली काउंसिल के, उस्मानी साहब आए, आपके साथ जलवा फरोज है, इंशाअल्लाह तारीखी हकायक पेश करेंगे, कौम की पर जो जुल्म अक़लियतों पर जो जुल्म हुआ है वो बयान करेंगे। आपके सामने बैठा हुआ है, और ये शेर का क्या कहना, नासिर हुसैन ये नहीं कहता कि मेरे को जवाब देने आता है, मैं जवाब नहीं, तुम मेरी तरफ से 10 तारीख को जवाब देना। ऐसी धीमी बात नासिर नहीं करता। नासिर रोड पे भी गरजता है, ऐवान में भी गरजता है, और गरीबों के मसाइल उठाता है। अगर किसी का हाथ नहीं उठे तो समझना ये 300, 400, 500 का रिचार्ज हुआ है इसे। क्योंकि आजकल रिचार्ज बहुत चल रहा है, नासिर को कमजोर करने के लिए काटा जा रहा है, पैसे देकर बुलाया। हम बिकने वाले नहीं है, वो और है जो फरोख्त होते हैं, हम वो है जो अपने मफाद के लिए कौम का सौदा नहीं करते। उठाओ ऐसा, ये अल्हम्दुलिल्लाह शेख रोजा है, ये इधर
حضرت یونس قادری حسن قادری لیتے ہیں، اور ادھر جو ہے حضرت سراج الدین جنیدی حضرت اویس خندمیر لیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ شیخ روزہ ہے، یہ شیخ کا روزہ ہے۔ ہم جانتے ہیں حق ہے تو شیخ بھی ہے، اور اگر کوئی غلط کرے تو ان کے پاس میخ بھی ہے۔ ہم غلط برداشت نہیں کرتے، ہے نا۔ نعرہ لگاؤ اب 3 بار، کیونکہ یہ اس لیے کہ مشین میں جو ووٹ کی مشین ہے اس میں 3 نمبر ناصر حسین صاحب کا ہے، بھارے والی عورت ہے، ناصر صاحب کی فوٹو ہے، سیریل میں 3 نمبر کا نشان ہے، ناصر حسین استاد۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھائے، ناصر حسین استاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اور 3 پروگرامز میں جانا ہے، اسی لیے میں یہاں پر زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور آپ سے صرف اتنا کہنے کے لیے آیا ہوں کہ میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں۔ یہ میرے تیسرا الیکشن ہے، 10 تاریخ کو پولنگ ہے، سیریل نمبر 3 ہے۔ یہ سارے چیزیں آپ کے علم میں ہیں، مگر اتنا ہی آپ اپنے دماغ میں اپنے دل میں رکھ لے کے جائیے کہ یہ دیگر الیکشنوں کی طرح الیکشن نہیں ہے۔ یہ الیکشن گلبرگہ شہر کی سیاست کو، گلبرگہ شہر کے اندر رہنے والے سیکولر ذہن رکھنے والے ہمارے بھائیوں کے لیے ایک نیا موڑ دینے والا الیکشن ہے۔ 40 سال پہلے گلبرگہ شہر نے اس دور کے ایم ایل اے مرحوم محمد علی صاحب کو شکست دے کر کے ایک نئی رہنمائی قیادت کو موقع دیا، اور آج پچھلے 5 سال آپ نے سیٹ بچانے کے نام پر آپ نے ووٹنگ کی اور سیٹ بچی، مگر افسوس ان گزشتہ 5 سالوں میں کسی کو محسوس نہیں ہوا کہ جو سیٹ پہ بیٹھے ہیں وہ ہمارے ہیں، غریبوں کے ہیں، ملت کے ہیں۔ ایک بھی بار ان گزشتہ 5 سال میں نہ اسمبلی میں ان کا کوئی بیان، نہ حجاب کے معاملے میں، نہ اذان کے معاملے میں، نہ کسی ایشو کو لے کر کے۔ عدد کا معاملہ آپ کے بیچ میں صاف طور پہ علم ہے، میں کوئی معاملے کو یہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ 4% ریزرویشن جو مسلمانوں کو ملا کرتا تھا، وہ 4% ریزرویشن ہندوستان میں کرناٹکا پہلی ریاست ہے جہاں پہ وہ 4% ریزرویشن دیا گیا، اور وہ 4% ریزرویشن مسلمانوں کو دینے کا کام جنتا دل سیکولر نے کیا ہے، ایچ ڈی دیو گوڑا جی نے کیا ہے۔ یہ آپ کو یاد دلانے کے لیے آیا ہوں، اس کو بی جے پی نے نکال دیا۔ آج گلبرگہ شہر میں کانگریس کے ذمہ دار، کانگریس کے لیڈرز کوئی بھی اچھے سے اچھے مقرر بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ایم ایل اے صاحبہ ہیں وہ بڑے قابل ہیں، انہوں نے کام کیا ملی معاملے میں، ملت کی، قوم کی تحفظ کی، مگر صرف 2 ہی چیزوں پہ بات ہو رہی ہے۔ ایک، سیٹ بچانا ہے، سیٹ بچانا ہے تو کانگریس کو ووٹ دیجیے۔ بی جے پی کے ڈر بتا کر کے ووٹ مانگنے کا کام ہو رہا ہے۔ میں آپ کے بیچ میں آپ کا ہے بھائی، مسلسل 5 سال ہر معاملے میں اپنے آپ کو آگے پیش کیا ہوں، آپ کی آواز بن کر ایڈمنسٹریشن کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، ہمت کے ساتھ، جرات کے ساتھ، چاہے سڑکوں پر، چاہے ڈی سی آفس پر، کمشنر آفس پر، یا چاہے ہندوستان کے بڑے بڑے
टीवी चैनल्स के अंदर, अपने आप को कमजोर नहीं समझा। आज अफसोस जो माहौल कर्नाटका में बना है वो हिंदुस्तान की आजादी से लेकर अब तक कभी भी इतना फिरका परस्त माहौल यहाँ पर नहीं है। कहीं कभी भी हिजाब का मामला, अजान का मामला, गोश्त का मामला, एंटी कन्वर्जन लॉ, आज शर्म और अफसोस की बात है कि इस मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ पर आते हैं और इस रियासत के चीफ मिनिस्टर की पीठ को थपथपाते हैं कि मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन निकालने का काम किया। इतना तंदिल, इतना कम जहन, अक़लियतों से, मुसलमानों से इतनी नफरत करने वाला आज हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बना है। गुलबर्गा के बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ पर फिर रहे हैं, मुसलमानों से बड़े अच्छे अंदाज में मुलाकात कर रहे हैं, मगर जब नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया तो उनकी तकारीर आपने सुनी है। गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मुसलमानों की अक़लियत है, उनका कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो गुलबर्गा नॉर्थ जो है पाकिस्तान बन जाता। महबस के मस्जिद के बाहर गणेश के त्योहार में उनका किरदार आपने देखा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि फासिस्ट ताकतें अपने बीच सबसे ताकतवर उम्मीदवार को, सबसे ज्यादा माइनॉरिटी से मुसलमानों के नफरत करने वाले को आगे कर रही है, और हम लोग आज भी वही गुंगी क़यादत को आगे पेश कर रहे हैं। मैं देखा, मैंने कभी इतने तकारीर हुए, कभी भी मोहतरमा करीस फातिमा साहिबा को कभी तनकीद नहीं की है। कभी भी मैंने उनको हमेशा मोहतरमा कहा है, मेरी माँ दाखिल कहा। आज भी उनको मैं माँ दाखिल नहीं कहूंगा, मगर उनको एक राय भी देना जरूरी है। मैंने वीडियो देखा, मुझे पता है कि उनकी तकारीर भी कोई लिख के देता है। उन्होंने कहा कि छिछोरे, शायद बीजेपी के उम्मीदवार को उन्होंने छिछोरे कहा है, मगर सियासत का उसूल ये है कि आप किसी को बोलते हो तो जवाब भी आता है, आप किसी को तनकीद करते हो तो उसका जवाब भी आता है। आप में वो सलाहियत नहीं है कि वो जवाब सुन सके, जवाब का सही जवाब दे सके। सियासत में नासिर हुसैन उस्ताद के बारे में कुछ भी बोल दीजिए, आपको माफी है, मैं एक लफ्ज आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा, एक लफ्ज, क्योंकि मुझे शिकायत आपसे नहीं है, आपसे शिकायत नहीं है। आप तो शतरंज के उस बड़े खेल के एक छोटे से मोहरे हो जो चाहती है कि गुलबर्गा जिले में मुसलमानों की रहनुमाई खत्म की जाए, क़यादत को खत्म की जाए, इसीलिए आपको आगे पेश किया है। आपसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, आप कुछ भी बोल लीजिए। आपको आगे पेश करने वाले वो 4 से 5 गुत्तेदार हैं जो 5 साल आपके नाम पर नोट बनाने का काम, पैसा बनाने का काम किए हैं, और आज वही 4 से 5 लोग पूरा इलेक्शन कर रहे हैं। वो लोग कभी नजर नहीं आए गरीबों के ऊपर जुल्म होते वक्त, कभी नजर आए एनआरसी में, वो नजर आए, कभी नजर नहीं। तो इसीलिए आज सुना है कि उन 5 लोगों में 1-2 लोगों के ऊपर ईडी रेड भी हुआ है। इतना ज्यादा पैसा कमा लिए हैं कि दिल्ली से आकर के उनके घरों को रेड करना पड़ रहा है। मोहतरमा, आपने उतना नहीं कमाया होगा जितने 5 लोगों ने कमाया है। तो इसीलिए आप सियासी तौर पर बड़े मासूम हैं, इस तकारीर के खेल में मत आइए। मेरा नाम नासिर हुसैन उस्ताद है, आपके पार्टी के सबसे बड़े मुकर्रिर को लाइए, इंशाअल्लाह उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम नासिर हुसैन, बड़े से बड़े मुकर्रिर। वक्त 4 प्रोग्राम है, वक्त बहुत कम है, ख्वाहिश है कि बहुत बात करूं। हमारे बीच ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के नायब सदर साहब हैं, इसीलिए मैं वक्त ज्यादा नहीं लेते हुए इतनी ही गुजारिश करता हूं कि 2 इलेक्शन हारा हूं, फिर भी हिम्मत नहीं हारा हूं, आपके लिए लड़ रहा हूं, जब तक जिंदा हूं आपके लिए लड़ता रहूंगा। डरने की जरूरत नहीं है, आपका भाई, आपका बेटा जब तक जिंदा है आपके लिए खड़ा नजर आएगा, आपके लिए मजबूती के साथ खड़ा नजर आएगा। 10 तारीख के इस इलेक्शन के अंदर आपको मेरे साथ इंसाफ करना होगा, आपको अपने आप के साथ इंसाफ करना होगा। करेंगे आप इंसाफ? करेंगे माँ? आराम से मुंडे में जोर से बोलना, करेंगे, नहीं तो हाथ उठा के बोलो, करेंगे? करेंगे। निशान क्या है मेरा?
निशान नंबर 3 है, भारे वाली औरत, और पहली बार ईवीएम के अंदर फोटो भी है। ये चेहरा तो नहीं भूलेंगे ना आप? भूलते हैं मां चेहरा? अच्छा है ना चेहरा, बेहतरीन, हैंडसम। तो ईवीएम मशीन के ऊपर फोटो भी है, भारा भी है, सीरियल नंबर 3 भी है। एक भी वोट गलती से उसको डाले इसको डाले नहीं होंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। कामयाब होशमंद जिंदा कौमें वही होती हैं जो इस तजब्जुब के दरमियान से ऐसा फैसला करके दुनिया के सामने उठे कि जो वो फैसला तारीखी हो और पूरी दुनिया इंसानियत के लिए, बिलखुसूस मुल्क और मिल्लत के लिए वो फैसला एक तारीखी फैसला बन जाए। मैं समझता हूं कि गुलबर्गा की सरजमीन पर इस इंतखाब में गुलबर्गा के लोगों, आपके सामने एक ऐसा ही मरहला खड़ा हुआ है कि आपको एक ऐसा फैसला करना है अपने इस इंतखाब में, इस चुनाव में, कि जो एक तारीख का हिस्सा बन जाए और आप छोटी छोटी बातों को छोड़कर मुल्क के उन हालात को सामने रखकर जिनसे पूरी कौम, पूरी इंसानियत और पूरा मुल्क इस वक्त दो चार है, उसमें आप एक ऐसा तारीखी फैसला कर दें जो आने वाले वक्त में सारी कौम के लिए रहनुमाई का सबब बन सके। गुलबर्गा पे नासिर उस्ताद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं बहुत दूर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मैं चाहूंगा कि आपसे कुछ बातें करके जल्दी से गुजरूं कि इस वक्त जो मुल्क का पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर सितम ही सितम नजर आता, नाइंसाफी ही नाइंसाफी नजर आती है। जुल्म की एक लंबी दास्तानें लिखी जा रही है। दस्तूर और कानून की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कमजोरों, गरीबों, किसानों, अकलियतों, दीगर माइनॉरिटीज के लोगों के साथ जो हो रहा है वो हम अपने सिरे पर पत्थर रखकर मुल्क में अमन और शांति, मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत, दस्तूर का एहतराम, कानून की बालादस्ती और मुल्क के अंदर सबके दरमियान में प्यार और मोहब्बत कायम रहे, उसको देखते हुए हम उसको सब्र और बर्दाश्त के साथ सिर्फ सियासी एतबार से उसका मुकाबला करने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर आमादा किए हुए हैं। कर्नाटक के लोगों, तुम्हारे सामने इसी सितम जरीफाना माहौल में तुम्हारे सामने फैसला करने का मौका आया है ताकि तुम आने वाले 2024 में मुल्क के लिए, कर्नाटक के लोग एक रहनुमाई कर सके कि मुल्क किस रुख पर जाना चाहता है और मुल्क किस रास्ते पर जाना चाहता है। आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। अभी नासिर उस्ताद साहब कह रहे थे, आप सोच सकते हो कि आजादी के बाद आपकी कयादत ने, आपकी लीडरशिप ने आपको रिजर्वेशन दिलवाने के लिए, आपकी गुर्बत से निकालने के लिए, आपको कमजोरी से निकालने के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी और आपने यहां से नासिर उस्ताद साहब जैसे आदमी को जिताने का इंतजाम नहीं किया और आपने ये मैसेज नहीं दिया कि 4% रिजर्वेशन देने वाले के हाथों को आप मजबूत करेंगे या रिजर्वेशन न देने वालों को आप मजबूत करेंगे या रिजर्वेशन छीनने वालों के हाथों को आप मजबूत करेंगे। आपका वोट आपको देना है। मैं तो नहीं पढ़वा सकता, आपसे कोई आपका बाजू पकड़ के तो नहीं पढ़वा सकता। आखिरी बात कह करके आपसे जाता हूं, आलिम दीन हूं, मेरी जिम्मेदारी है आपके बीच कुछ कह करके जाऊं। याद रखना, जमहूरी मुल्क में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में वोट की ताकत जो अल्लाह ने आपको अता की है, ये कोई तमाशा और मजाक नहीं है। आप बहुत बड़ी कीमत के मालिक हो। अल्लाह की दी हुई कानून के जरिए से अमानत है ये। इस अमानत का अगर आपने इस्तेमाल पूरे नापतोल के साथ नहीं किया और सूझ बूझ से नहीं किया तो अल्लाह के अगर गलत आपसे इस अमानत के इस्तेमाल का आपने किया तो अल्लाह की यहाँ भी जवाबदेही होगी हमारी। मजहबी एतबार से, सियासी एतबार से, इंसानी एतबार से मुल्क के हालात को सामने रखकर अपने इस कीमती वोट का इस्तेमाल समझदारी से करना और कोशिश करना कि आपका वोट मुत्तहिद होकर के
मुत्तफिक होकर के जनाब नासिर हुसैन उस्ताद के हक में पड़ जाए और पूरे कर्नाटक से एक ऐसा मैसेज जाए कि आप अपने हुकूक के बारे में अच्छी तरह से समझते और जानते हैं। मुत्तहिद होकर एक अच्छे लीडर, अच्छे कायद को चुनना है, क्योंकि यहां पर क़यादत की कमी महसूस हो रही। पिछले 5 साल से आपने देखा है, 5 सालों में यहां कोई एमएलए था को महसूस नहीं कर रहे हैं हम। चाहे हिजाब का मामला लो, चाहे अजान का मामला लो, चाहे हलाल कट लो, यहां पर एमएलए रहते पर भी कोई आवाज नहीं उठाई। आज अली जनाब अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने जब अजान का मामला आया, एक स्वामी कहता है मस्जिद के पास चालीसा पढ़ूंगा और स्पीकर निकालूंगा, लेकिन वहां पर कायदा मोहतरम अली जनाब अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने सुबह से लेकर शाम तक बैठा, कौन आता है देखेंगे वो कहेंगे। जब हमारी बच्चियों का हिजाब का मामला आता है, किसी ने आवाज नहीं उठाती। और आज ये कांग्रेस कहते हैं, कुछ कांग्रेस के लोग कहते हैं बीजेपी का जो करने का जो मुंह तोड़ जवाब देती है कांग्रेस, कहां से जवाब देते हैं आप? असेंबली के अंदर मुस्लिम के 7 एमएलए हैं, किसी ने आज तक हिजाब का मामला हो, अजान का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, जब खौफ की बात होती है तो कोई भी एक भी एमएलए अंदर असेंबली में आवाज नहीं उठाता, क्योंकि उनके आका का फरमान आता है। डीके शिव कुमार साहब कहते हैं हिजाब के बारे में कुछ नहीं कहा जाए, खाली चॉकलेट दी है मुसलमानों को। यह वो कांग्रेस है। बताइए मुसलमानों क्या किया इन्होंने? जब मुसलमानों के वोट लेते हैं लेकिन आवाम में खामोश बैठे रहते हैं, 7 एमएलए, लेकिन आवाज में वहां पर आवाज में कोई आवाज नहीं उठाता। आज सोशल मीडिया के जमाने में तमाम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखे होंगे कि अलन में क्या वाकयात पेश आए, कैसे हालात का हमने सामना किया। उस वक्त हम लोग तन्हा महसूस कर रहे थे जब हमने अलन में एक मंदिर होने का दावा पेश किया गया, तो हमने अपने हक का इस्तेमाल करते हुए वहां पे आवाज उठाई। हमने कुछ नहीं किया बल्कि आवाज उठाई, लेकिन हमको इस दस्तूर की जानिब से दिए गए हक का इस्तेमाल करने पर हम पे जुल्म किया गया। उसी रात को जब सब लोग आराम कर रहे थे अपने मकान में, आधी रात को आके हमारे लोगों को घसीट कर घरों से ले जाया गया, उनको मारते हुए ले जाया गया। अगर किसी की माँ बहनें आए आती तो उनको ढकेल के जेलों में लेके जाके बंद कर दिया गया। ये नहीं देखा गया कि वो औरत बुजुर्ग है या वो औरत बीमार है। कुछ भी हालात को, तमाम हालात को नजरअंदाज करते हुए ये लोगों ने खुलेआम जुल्म का मुजाहरा किया। हमारी गलती ये थी कि हमने अपनी जगह को अपनी बताई, अपनी दरगाह को अपनी बताई। लाले मशाख दादा सरकार जिसके हम मुजावर हैं, उस जगह पर हमने अपना हक जताया और ये बताया कि यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है। हमने अपनी आवाज बुलंद की और हमें जुल्म सहना पड़ा और हमारे नौजवान भाइयों को अलहदा जेलों में, इतने बसों का इंतजाम था वहां पे, अलहदा 5 जेलों में तकसीम करके उनको भेजा गया। ना उनकी खबर दी गई, ना उनके मुतालिक कुछ बताने को ही तैयार थे। ऐसे हालात में आली जनाब नासिर हुसैन उस्ताद अलग तशरीफ लाए और हमारे घरों के अतराफ आए और हमारे हालात से वाकिफ होने की कोशिश की और हमारी हर तरह से मदद की। उन्होंने हमारे नौजवानों को वापस लाया, उन्होंने जेलों से छुड़ाकर। और उस वक्त जब तमाम हमारे मर्द हजरात जेलों में बंद थे, हम घरों में सिर्फ खवातीन और मासूम बच्चे थे। दूध तक उन बच्चों को मुहैया नहीं किया गया, दूध तक नहीं नसीब हुआ।
बच्चे रोते और पूछते कहाँ है हमारे घर के आदमी, कहाँ है मेरे वालिद, कहाँ है मेरे चाचा, और पुलिस क्यों उन्हें डंडे मारकर लेके गई, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे हालात में नासिर साहब आए और उन्होंने घरे घर अनाज भी हमको फराहम किया, छोटे बच्चों के लिए दूध फराहम किया। यही बात हमारे दिलों में घर कर गई है कि ऐसे कायद जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ निभा सकते हैं, इनको ही ऐवान में जगह मिलनी चाहिए। जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब अपने मुंह में सच्ची जबान रखते हैं और अपने दिल में पुख्ता ईमान भी रखते हैं, इसीलिए लोगों इनकी जगह कोई नहीं बल्कि वो अपनी जगह ऐवान में रखते हैं। आप लोग अपनी पूरी कोशिश कीजिए और उनके नंबर 3 पे वोट डाल के ज्यादा अक्सरियत से उन्हें कामयाब कराइए।